Now let's see what is hard disk. Hard disk drive. So hard disk drive is a permanent storage device and it is divided into blocks. So hard disk is divided into blocks, and we have studied that memory, that is RAM, is divided into frames, and we have also studied that process is divided into pages. So always remember that one is blocks, frames and pages. So understand this. Also remember that block size is always greater than equal to frame size or page size. Why? Because frame size and page size are equivalent, so that's why OR. And block size, if block size is 512 KB, so it is possible that frame size and page size will be either 512 KB or less than that, but not more, because in RAM we have a small amount of data, in hard disk we have very large amount of data, and that's why we keep block size as larger than the frame size. Okay, now there is something called directory. So what is directory? Directory is also an abstract data type like file. Abstract data structure like file. Okay, it holds the information about collection of files. So जनरली डायरेक्टरी को हम नॉर्मल रियल लाइफ में फोल्डर्स बोलते हैं. तो फोल्डर्स क्या हैं? वो भी एक तरह की फाइल्स ही हैं, बट वो इंफॉर्मेशन क्या रखती हैं कि उस फोल्डर के अंदर या उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी और फाइल्स हैं. ठीक है, फाइल क्या इंफॉर्मेशन रखती है? एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में. वेयरएज डायरेक्टरी क्या इंफॉर्मेशन रखती है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स और इवन डायरेक्टरीज. ठीक है, एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स प्लस फाइल्स हो सकती है. सो नाउ लेट्स से दिस इज आवर हार्ड डिस्क. डू नॉट अज्यूम दैट कि वी हैव multiple directory level right now. We can have single level directory, we can have two level directory, or we can have multi level directory also. We will start with the smallest one first. Let's say this is our whole hard disk, and we have divided this hard disk into two partitions. So this is partition 1 and another partition is this. So this is partition 2. और partition को हम और क्या बोलते हैं? वॉल्यूम और ड्राइव. लेट से आपके कंप्यूटर में होता है सी ड्राइव, ए ड्राइव. ओके, सो दैट इज अ पार्टीशन. अब यहाँ पे लेट से हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है F1, फिर ये फाइल है F2, ये फाइल है F3, ये फाइल है F4. ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी हुई है F11, F12 और F13 और लेट से F50. ठीक है, तो इस पार्टीशन 1 को कैसे पता हो कि F1 X से स्टार्ट हो रही है और Y पे खत्म हो रही है, या F2 Z से स्टार्ट हो रही है और A पे खत्म हो रही है? इसको कैसे पता चलेगा? तो वी हैव अ स्पेशल डायरेक्टरी, दिस स्पेशल फाइल कॉल्ड डायरेक्टरी विच इन होल्ड्स और स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टिंग एड्रेसेस और एंडिंग एड्रेसेस ऑफ or starting locations of these files. Okay, so what are the information it may have? So understand, let's say this is our hard disk and now this is our directory and these are files F1, F2 and so on. Similarly this is directory, this is F11, F12 and so on. So this is a directory which consists of various information. What all the information it may have? So file name, so file name is let's say F1. Block start,
So block start means it is starting from 100. So we will start write 100 here. What is the size of this file? Let's say this file is of 10 KB. So it will have size of 10 KB, and it will also have the access. Access means, let's say this file can be accessed by user 1. So we have written user 1. Okay, so this is the directory structure. Now what are the operations available with directory? Operations on directory. So first operation is search. You can search the directory, you can create a directory, you can delete a directory, you may rename a directory. Like files, we have the same operations on directory as well. Or you may want to list all the directories. So list मतलब लेट्स से हम एक डायरेक्टरी में है XYZ और हमें सारी फाइल्स उसके अंदर जितनी भी हैं उसको लिस्ट करना है. तो लिस्ट इज द कमांड. और यू मे वांट टू ट्रैवर्स इनटू द डायरेक्टरी. सो लेट्स से ABC एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर XYZ एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक फाइल है a.txt. तो ये ट्रैवर्सिंग का काम करता है. बट दिस इज नॉट अ वन लेवल डायरेक्टरी, इट इज मल्टी लेवल डायरेक्टरी और 2 लेवल डायरेक्टरी. ओके, वी विल स्टडी अबाउट दीज लेवल्स इन अ मोमेंट. ओके, सो दीज आर द डायरेक्टरीज. नाउ वी हैव different types of directories. So first one is single level directory. What is single level directory? हमारे पास ये फाइल सिस्टम है, इसके अंदर हमने कहा इस फाइल सिस्टम में यहाँ पे ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे एक फाइल है. ठीक है. सो दीज आर द फाइल्स एट वन लेवल. ठीक है. हम एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है और उसके अंदर ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है. तो ये क्या है हमारे पास? सिंगल लेवल डायरेक्टरी. ठीक है. एक ही लेवल पे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो इसकी एडवांटेज क्या हुई? एडवांटेज इज इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट. सो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी simple. What is another advantage? Searching is easy because whatever we have is available at level 1 only. Okay, so searching is easy. Best for small size files. Best for small size files. But there are some disadvantages also. What are the disadvantages? So not suitable for large files. Another disadvantage is naming is difficult. Why naming is difficult? So let's say this file is, let's say, test.c and you want to name this file also test.c. So it is not possible to have same test.c file within a directory. So this structure is like this. So this is ABC as a directory and inside this you have multiple files. So the files are available at level 1 only. Only one directory is available and that directory is having all the files. So यहाँ पे test.c और test.c दो फाइल एक जैसे नाम से नहीं हो सकती अगर आप रखना चाहो. So naming is difficult. So that's why we have went to 2 level directory. So 2 level directory में क्या होता है? At first level master file directory is available. Master file directory is available. Okay, and MFD, that is master file directory, contains the information of various directory. Okay, at level 2 and their access rights. अभी हमने ऊपर देखा कि इसके अंदर
एक ही लेवल पे सारी फाइल्स हैं, तो इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकती है। देखो लेट से ये फाइल है हमारे पास जिसको हम चाहते हैं यूजर 1 ही यूज कर सके, ये वाली फाइल है जिसको हम चाहते हैं यूजर 2 ही यूज कर सके, लेकिन क्योंकि ये एक ही डायरेक्टरी के अंदर है तो अगर यूजर 1 आएगा तो वो सारी फाइल्स को लिस्ट कर सकता है। डू नॉट गो विद द करंट ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग, इट इज नॉट सिंगल लेवल फाइल डायरेक्टरी। अगर सिंगल लेवल फाइल डायरेक्टरी आप देखोगे तो उसके अंदर एक ही फोल्डर है और उसके अंदर सारी फाइल्स हैं, तो कोई भी यूजर आएगा वो सारी फाइल्स को देख सकता है, तो सिक्योरिटी भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, एक्सेस राइट से नहीं दे सकते आप। तो सेकेंड लेवल 2 लेवल डायरेक्टरी के अंदर हम राइट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन इज एट लेवल 2 वेरियस अदर डायरेक्टरीज हैविंग various data of single user in each or one type is available। अभी इसका मतलब समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, एक MFD दैट इज मास्टर फाइल डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपने बहुत सारी डायरेक्टरी बना दी, जैसे ये D1 एक डायरेक्टरी, फिर ये D2 डायरेक्टरी, फिर ये D3 डायरेक्टरी, ऐसे ही D4 डायरेक्टरी। MFD के पास इन डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर सारी फाइल्स हैं जो डायरेक्टरी 1 से रिलेटेड है या यूजर 1 से रिलेटेड है, यही कहा है हमने। ये हमारा लेवल 1 है और ये वाला हमारा जो फाइल्स हैं जहां पे वो है लेवल 2। तो एट लेवल 2 वेरियस अदर डायरेक्टरीज हैविंग वेरियस डेटा ऑफ सिंगल यूजर, सो यू कैन कंसीडर दिस D1 as single user, D2 as another user, D3 as another user, or you may consider that D1 as videos, D2 as music, D3 as work related, D4 as something else, so that kind of data also कैन बी कंसिडर। अब सारी वीडियो रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे हैं या सारा D1 यूजर रिलेटेड फाइल यहाँ पे है, ऐसे D2 यूजर रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे हैं। तो पहले क्या हो रहा था, जो भी इस फाइल डायरेक्टरी में आएगा वो सारी फाइल्स को देख सकता है, वो यूजर 1 हो या यूजर 2 हो। यहाँ पे अगर हम इसको यूजर 1 बना दें तो वो केवल अपनी डायरेक्टरी देख सकता है, इसमें जाएगा तो एक्सेस डिनाइड, क्योंकि हमने एक्सेस राइट्स लिख रखे हैं MFD पे। तो MFD लेट से यहाँ पे आया यूजर 1, अब MFD बोलेगा यूजर 1 कैन ओनली सी दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो आगे और कहीं देख ही नहीं सकता। सो दैट कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, लेट से हमने इसको बोला यूजर 3 और ये यूजर 3 के अंदर मैं वीडियोस रखना चाह रहा हूँ, मैं म्यूजिक फाइल्स भी रखना चाह रहा हूँ, वर्क फाइल्स भी रखना चाह रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है यूजर 2 के पास अपनी वीडियो फाइल्स हों, इसके अंदर अपनी म्यूजिक फाइल्स हों, इसके अंदर अपनी वर्क रिलेटेड फाइल्स हों, क्योंकि हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी नहीं बना सकते बिकॉज ये 2 लेवल का ही है। तो ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, लेट से ये हमारी फाइल थी यहाँ पे, लेट से printf, और ये printf फाइल वो D2 भी यूज करना चाहता था जो कि उसको अलाउड होनी चाहिए, तो वो शेयर नहीं कर सकते। शेयरिंग ऑफ द फाइल्स इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, सो एक तरीका इसका ये है कि हम यहाँ पे एक बना दें डायरेक्टरी सिस्टम फाइल्स। तो इस सिस्टम फाइल्स को हम बोल देते हैं कॉमन फाइल्स टू ऑल, ठीक है। तो अगर हम इस printf फाइल को इस सिस्टम डायरेक्टरी में रख दें तो क्या होगा, इस सिस्टम फाइल डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो सब यूज कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगेन प्रॉब्लम ये सिस्टम फाइल्स के लिए आपने सॉल्व की है। अगर हम चाहते हैं कि लेट से ये एक म्यूजिक फाइल थी, वो म्यूजिक फाइल D2 एक्सेस कर सकता है, हम उसको परमिशन देना चाहते हैं, बट जैसे ही वो MFD के अंदर आएगा तो उसको केवल यही एक्सेस करने को मिलेगा और ये तो वो देख नहीं सकता। तो इससे शेयरिंग ऑफ इंडिविजुअल डेटा इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो फॉर दैट पर्पज वी वेंट टू द थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टरी, दैट इज ट्री डायरेक्टरी। ट्री डायरेक्टरी में क्या होता है, हमारे पास एक रूट लेवल पे डायरेक्टरी होगी,
इस रूट डायरेक्टरी को हमने डिवाइड किया लेट से यूजर 1 में और लेट से यूजर 2 में, और भी हो सकते हैं यूजर 3, 4, 5। अब यूजर 1 अपना अलग से डायरेक्टरी बना सकता है, जैसे लेट से ये मूवीज की डायरेक्टरी है, यहाँ पे म्यूजिक की डायरेक्टरी है, यहाँ पे लेट से वर्क रिलेटेड डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरीज बना सकता है। लेट से मूवीज में उसने रखा हिंदी और उसने यहाँ पे रखा इंग्लिश, और ऐसे ही म्यूजिक में या वर्क रिलेटेड में उसने रखा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यहाँ पे रखा उसने DBMS। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता है एट एनी पर्टिकुलर लेवल, और फिर इसके अंदर फाइल्स आ सकती है। ठीक है, तो यह है ट्री डायरेक्टरी। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है, फाइल शेयरिंग, जो अभी लास्ट टाइम भी थी कि लेट से ये फाइल मैं यूजर 2 को भी शेयर कराना चाहता हूं, तो कैसे कराएंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक बना सकते हैं, वी कैन मेक अ लिंक। So this link can be made by which a user can access a file which is allowed to use by them. Okay, and let's say we want to access this particular file, so for that accessing we need to use paths. Okay, and what is a path? Path is a way through which we can traverse that file. So in order to access this file, we have to go from root to user 1, then from user 1 to movies, then movies to Hindi, and then we can access it. So the path will become root slash user 1, then slash movies, then slash Hindi, and then let's say the file name is ABC. So this whole thing will be a path. And path are of two types. One is relative path and another one is absolute path. So this path is called absolute path. So when you provide whole path from root till the file, then that is called absolute path. Now let's say you have stored this path in some variable called pwd. Let's say this is present working directory. Okay, and after that you have provided the file name, that is let's say Hindi, and then XYZ. So this is the XYZ file you want to access. So instead of providing the whole path, what you did is you have provided only this path, and rest of the path is already available in your variable. So that path is called relative path, relative to some other path. Okay, that is how we can access the files. So sharing of files can be done by using links. Okay, and this links are used in actually Linux. So MS-DOS does not use links. And now you can see that because of these links a cycle has formed. So how the cycle is formed? So this is a cycle, let's say here. So this is a cycle. Okay, now this thing is a cycle. Now you can see that this cycle is not actually a cycle. Why? Because either you can go from this side to this side, or you can go from this side to this side. Okay, so because they are only forward paths, they are not coming back to the root. So this cycle is called a cyclic graph. Okay, so because of these links a cycle is formed, and that cycle is called a cyclic graph. That is not a, so you can think like this also, a tree is nothing but a cyclic graph only. Okay, and now in the end the deletion is difficult in the links. Why deletion is difficult in this links? Because let's say you have deleted this file, and from this way this user 1 has deleted this file, so this path has broken. Now if user 2 comes from this side, it already have this link. So what will happen? This link will be broken.
So if you delete a file, all links must be deleted before deleting actual file. Okay, so what we should do in order to delete a file, we have to delete all the links also, and for that we have to keep track of the counter of links. So counter of links is used to keep track of all links. फिर से देखिए, अगर लेट से आप इस पूरी फाइल को, ये जो हमने यहां से स्टार्ट किया यूजर 1 के थ्रू, इस फाइल को डिलीट कर दिया, लेट से ये फाइल डिलीट हो गई, तो ये वाला लिंक तो अभी भी अवेलेबल है। इस लिंक से अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये ब्रोकन बोलेगा, दिस फाइल इज ब्रोकन, दिस फाइल इज नॉट फाउंड, और सेगमेंटेशन फॉल्ट भी दे सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम इस पाथ से आए और इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करें, तो बिफोर दैट वी हैव टू डिलीट दिस लिंक ऑल्सो। और इस लिंक को डिलीट करने के लिए हम ये रख सकते हैं, एक लिंक नाम का काउंटर रख लें, लिंक काउंटर। अगर वो 0 है तो इस फाइल को डिलीट करें, अगर वो 0 नहीं है, लेट से ये 1 था, तो पहले इस लिंक, जो 1 लिंक है उसको डिलीट किया जाए और फिर इस फाइल को। अगर ये काउंटर 10 था तो सारे 10 लिंक्स होंगे हमारे पास, उन सारे लिंक्स को पहले डिलीट किया जाए और फिर इस फाइल को डिलीट किया जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइल्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी द access methods. Thank you.